Hello everyone. So in the previous lecture we have covered about the feasibility study, the project report part. So in this lecture we are going to study what are the different kinds of factors which are determining the location. So business firms need to select the best suitable location for setting up a business unit. So whenever a business unit is set up or whenever a business organization wants to establish its business, it's considering the basic factors which are very important, and the organization see all these factors, and if these factors are favorable for the organization, then only the organization moves further, because these factors are very important for the organization to work properly, to provide the services to its customers, and all these parameters are basically concerned. So we are going to discuss now the different factors which are determining the location. Let us start with the point. First point is law and order situation. So there are certain kind of general factors also, general law and order situation. If you see, there are certain factors such as infrastructure facilities, whether the roads, whether the power supply is proper or not, whether we are going to get productive staff, whether we are going to get trained staff, availability of the social infrastructure like schools, hospitals, and how is the atmosphere also, how is the part related to the organization, the incentives, the concessions which are available from the government. All these parameters are basically seen. So first and the important factor is law and order situation. This is one of the most important factors which business firms consider in locating a business within a new business unit, or basically a business in a area or a region. Basically if you see, लॉ एंड ऑर्डर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो लॉ एंड ऑर्डर देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लिए कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे काफी सारे पंगे हो सकते हैं, काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो लॉ एंड ऑर्डर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वहां अगर हम हमारा बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे तो दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. तो ये सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रख के हमको हमारे बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है या नहीं, उसके बारे में सोचना पड़ेगा. सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो जो भी हम साइट सिलेक्ट करने वाले हैं वहाँ पे एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए. जैसे पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होना चाहिए, वाटर सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, सारे के सारे फैसिलिटीज प्रॉपर होने चाहिए. बिकॉज इफ यू सी, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्रीज. अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होंगे तो हम ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमको मिल पाएंगे. ट्रांसपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, फिर बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए. अगर हम ध्यान से देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को आगे लेके जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं. तो वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, एंड वी नीड टू फाइंड आउट whether the area which we have selected, are we getting that much kind of infrastructure facilities, whether the transport, communication, power, electricity, water, banking facilities, all these facilities are proper in the area which we have selected or not. If that is the point, if we are getting all these facilities in a specific area, then we can move further. That all points constitutes the infrastructure facility. The third point is industrial relations. तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम अगर कंपटीशन करते भी होंगे तो भी हमारा रिलेशन हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ कैसा है. देखो, कंपटीशन अपनी जगह है और इंडस्ट्रियल रिलेशंस अपनी जगह है, ताकि अगर कोई कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमें उस कंपनी से असिस्टेंस, हेल्प मिल पाए. तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी रखना बहुत ज़रूरी है. और इंडस्ट्रियल रिलेशंस गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के बेसिस पे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बेसिस पे भी देखे जाते हैं. तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा मेंटेन हो जाता है. क्योंकि लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी हमको डिफ़िकल्टीज आई, तो हम हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, अगर हमारा उनके साथ अच्छा रिलेशन हुआ तो. पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स. तो आपको ऐसा एरिया डिसाइड करना है, ऐसा रीजन डिसाइड करना है, या ऐसा एरिया में अपनी साइट को एस्टैब्लिश करना है जहाँ पे हमें स्किल्ड वर्कफोर्स मिले.
बिकॉज जहाँ पे हमें स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलेगा तो वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है वर्कर्स को वहाँ लेके आना। तो स्किल्ड वर्कफोर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी शुड गेट कॉम्पिटेंट स्टाफ। दी पर्सन शुड बी एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स होने चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होने चाहिए। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज अगर बात करें तो वो लोग ऑलरेडी ट्रेंड होने चाहिए। अगर ऐसे एरिया में आप बिजनेस एस्टैब्लिश करोगे जहाँ पे आपको ट्रेंड स्टाफ नहीं मिलेगा तो दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फैक्टर which organizations takes into consideration whenever they are establishing any of the unit. So that is called skilled workforce. Next is social infrastructure. So social infrastructure is also an important point, important factor which is determining the location. Because सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नियर बाय होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए। अगर कभी कुछ ट्रेजेडी हो गई ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए हमको नियर बाय हॉस्पिटल्स होने चाहिए। फिर प्लेसेस ऑफ वर्कशिप जो है, टेम्पल्स नियर बाय होने चाहिए, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्लब्स होने चाहिए, थिएटर्स होने चाहिए, ताकि जो वर्कर पूरे हफ्ते काम करके थक जाएगा उसको ये सारी चीज़ें अगर होगी नियर बाय तो वो रिफ्रेश हो जाएगा और वो फिर से ऑर्गेनाइजेशन में उसी जोश से या उसी मोटिवेशन से काम कर सकता है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बात करें हम तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कवर्स ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, प्लेसेस ऑफ वर्कशिप्स, ये सारी चीज़ें आजू बाजू हमारे होने चाहिए ताकि अच्छा खासा उससे बेनिफिट मिल पाए। पॉइंट इज नंबर 6 इज इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जहाँ पे हम हमारा बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हमारे बिजनेस की तरफ जो देखने का नज़रिया है वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टर फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसे एरिया में बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है जहाँ पे कम से कम रेगुलेशंस हो, कम से कम फॉर्मेलिटीज हो। जितनी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज है वो आप हम अपने साइड से करोगे ही, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट देयर शुड नॉट बी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। इसमें एक वर्ड आता है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, मतलब जानबूझ के लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आपको अगर किसी स्टेट में बिजनेस एस्टैब्लिश करते वक्त होता होगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए उस स्पेसिफिक गवर्नमेंट का जहाँ पे बिजनेस को एस्टैब्लिश किया जा रहा है या जहाँ पे आपने लोकेशन को सेट किया है। अगर ये सारे पॉइंट्स में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ज़्यादा हर्डल्स नहीं होंगे, ज़्यादा लूप होल्स नहीं होंगे, तो दैट द बिजनेस विल बी एस्टैब्लिश इन सच काइंड ऑफ एरिया वेयर इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड इज अवेलेबल। तो ये भी एक पॉइंट काफ़ी मायने रखता है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस। तो ऐसे जगह पे बिजनेस एस्टैब्लिश करो जहाँ से आपका यूनिट जो है या प्रोडक्शन होने के बाद जो फिनिश गुड्स बनेंगे वो आप मार्केट में तुरंत पहुँचा सकोगे। तो नियरनेस टू द मार्केट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जितना आप लोकेशन दूर रखोगे उतना आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर आप पेरिशेबल कमोडिटीज़ को बनाते होंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या अगर आप प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टिंग में भेजते भी होंगे तो भी ट्रांसपोर्टिंग का काफ़ी ज़्यादा चार्जेस बढ़ जाएगा और वो सारा बर्डन हमारे एंड कंज्यूमर्स के ऊपर आएगा। इसलिए प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे जगह पे प्रोडक्ट्स बनाओ जहाँ से आप तुरंत मार्केट में पहुँचा सकोगे। दैट इज द पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो भी हमें रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जो हमारे सप्लायर्स है वो भी हमसे नियर बाय होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने हमारे क्रेडिटर्स को या सप्लायर्स को रॉ मटेरियल्स का ऑर्डर दिया और एक एक महीने के बाद हमको उसका रॉ मटेरियल्स का सप्लाई हो रहा है, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो द सप्लायर शुड बी नियर द विसिनिटी, नियर द लोकेलिटी। जो रॉ मटेरियल्स का सप्लाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो भी नियरनेस होना चाहिए। अगर जितना नियर होगा उतना ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट कम लगेगा और उतना हमें फ़ायदा हो सकता है कि अगर बल्क ऑर्डर मिला कभी भी तो वो बल्क ऑर्डर हम यूज़ कर सकेंगे प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। नंबर 9 इज सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ बात की। तो जो हमारी कंपनी है उसके आजू बाजू में भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जो हमको एक सपोर्ट प्रोवाइड करे, ताकि अगर कोई भी कभी भी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएगा तो वो हमें हेल्प कर सकते हैं। दैट इज द सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज का पॉइंट। नेक्स्ट इज सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर हम कहीं ऐसे तरीके से कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हमें सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स भी ध्यान में रखने हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम कुछ ऐसा केमिकल बना रहे हैं तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ को ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं और एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा फायर भी ऑकर हुआ है बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ में।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी के वेरियस काइंड्स ऑफ पॉइंट्स को हमें ध्यान में रख के हमारे वर्कर्स को भी सेफ्टी के जो भी गियर्स होंगे वो सारे गियर्स हमको उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अदर फैक्टर्स की बात करें तो जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो कितनी महंगी है, सूटेबिलिटी कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस उस एरिया का कैसा है, तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। दैट इज कॉल्ड एज द अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के हमें हमारा बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है। तो सर द पॉइंट्स आर नथिंग बट ऑल दिस पैरामीटर्स और ऑल दिस फैक्टर्स विल बी कंसिडर बिफोर अ यूनिट इज एस्टैब्लिश और बिफोर वी वांट टू एस्टैब्लिश अ न्यू यूनिट इन एनी काइंड ऑफ लोकेलिटी। ये सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। तो ये था हमारा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लोकेशन। और जैसे मैंने एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड किए ही है और भी आपको एमसीक्यूज इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ से आपके कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो रहे हैं और जहाँ से आपका बेसिक जो थ्योरेटिकल बेस है वो भी रिवाइज हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय ऑल ऑफ यू। टेक केयर।